Now view है आपको screen view? Okay, fine. Consumers equilibrium. बेटे 2 words आपने mind में रखने हैं, consumers and equilibrium. Consumers equilibrium. Consumer mean we or all. I mean who's spending money to get satisfaction. I want to get satisfaction by spending my precious money. Whatever I am earning and whatever I have right now in my pocket, that is money. And money is the most important thing for every consumer and every individual in the world. Agreed or not? Money is important for all of you or not? Agreed. Yes. So I want to waste my money, or why I want to utilize my money to get maximum benefit. Maximum satisfaction. Exactly. So I don't want to waste my money. So what is the wastage of money? If I'm spending my money in a way, then I'm not able to get maximum utilization, maximum utility, maximum benefits. If I am unable to get maximum benefit with my limited income, so that means I'm not consuming my money rationally. I'm not consuming my money sensibly, because I am using my money and I'm not getting maximum satisfaction. So consumer is a rational one. Consumer is the most sensible person in economics, who knows that where, when, and how much money I have to spend. Where, when, and how I have to spend my money to get maximum satisfaction. So when we are able to get maximum total utility, limited income, maximum total utility with my limited income, this is what in fact it is consumer equilibrium. It is what? It is in fact consumer equilibrium. Consumer will be in equilibrium when he is getting maximum satisfaction with its limited income. क्योंकि मेरा 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 इशू यही है कि मेरे पास लिमिटेड से इनकम है और मैं उसे कंज्यूम करूं. ओके, आई ट्राई टू स्पीक स्लो. मेरा इशू ये है कि मेरे पास लिमिटेड इनकम है और उस लिमिटेड इनकम से आई वांट टू गेट maximum total satisfaction. Okay, so if I am getting maximum total satisfaction with my limited income, that is in fact consumer's equilibrium. Okay, okay my dears. So my dears, everyone, hello. Is it fine now? Voice का issue तो नहीं है? जाहिर वॉइस का इशू कह रहे हैं, डिस्टॉर्शन का.
ओके माय डियर्स, लेट मी चेक। आपको आइडिया तो है ये टेक्नोलॉजीज के इश्यूज हैं, माइट आपकी साइड पे कोई इंटरनेट का इशू है या व्हाटएवर। थिंग्स आर फाइन, आई मीन ओके फाइन, थैंक यू। ओके अब बेटे आप लोगों ने देखना है ये ऑनलाइन क्लासेस या लाइव लेक्चर्स होते हैं माय डियर्स। बेटे ये जो लाइव लेक्चर्स होते हैं इसमें ये टेक्नोलॉजी का जो इशू है आपको रिज्यूम कांस्टेंट करके मूव करना पड़ेगा। आई मीन हमें थोड़ा सा इसको एडमिट करना पड़ेगा कि इन पाकिस्तान वी हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज। मुझे आपकी तरफ से इंडिविजुअली कोई इशू नहीं है एंड आई एम श्योर कि आपको यस और आई एम श्योर कि बीइंग ए टीचर मेरी तरफ से आपको इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। बट सो फॉर एज टेक्नोलॉजी एंड अदर गैजेट्स आर कंसर्न्ड, you know, this is the part and parcel. Okay. Now please let me come to the topic, that is consumer equilibrium, maximum total utility with limited income. अब देखें जब हम बात करते हैं ना कंज्यूमर बिहेवियर की या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये कहता है कि आई वांट टू ओके सलमान साहब यू आर प्रोमोटिंग रॉन्ग। ओके जब आप बात करते हो ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो बेटा आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो है उनका स्ट्रेस ये है दैट क्वांटिटेटिव measurement of utility is possible. Quantitative measurement of utility is possible. वो ये समझते हैं कि आप यूटिलिटी को, फीलिंग को क्वांटिटेटिवली इनके नंबर्स में मेजर कर सकते हैं और ये समझते हैं कि ऑल दैट नॉट पॉसिबल। बट just comparable
यानी कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, ये स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो यूटिलिटी को, जबकि ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नॉट सर, नॉट पॉसिबल, यू जस्ट कैन कंपेयर utilities. You have taken two different flavors. You can just reveal कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये काम नहीं अच्छा लगता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। और ये लोग ये समझते हैं कि नो, by using different flavors you can even reveal कि मुझे पहली प्रोडक्ट में इतना सेटिस्फेक्शन फील हुआ और सेकंड प्रोडक्ट में मुझे इतना यूटिलिटी फील हुई। तो एक कहता है यू कैन क्वांटिटेटिवली मेजर, अदर और सेकंड कहता है नो। यहां तक क्लियर हुई बात? माय डियर्स, इज इट क्लियर? तो ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो अपने अपने तौर पे कंज्यूमर को उसके इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाते हैं। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। हम पहले भी बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन with your limited income, this is only possible when utility derived from the different commodities will be equal. Utility derived from different goods is equal. इनके अगर आप डिफरेंट गुड्स यूज करते हैं और उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज आपस में इक्वल हैं, तो आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन होगा दैट वुड बी मैक्सिमम। अब जारी बात, ये बात आमतौर पर नहीं समझ आती, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सपोज two goods X and Y, income is ₹5। सपोज आपको ₹5 है and all other factors are being constant, right? आपको दो डिफरेंट कमोडिटीज हैं, रुपीज कितने हैं, 5। वन टू थ्री फोर एंड 5 रुपीज 5 है आपको, और दो डिफरेंट गुड्स हैं X एंड Y। आप क्या कर रहे हैं, एक सपोज करें आपने X कमोडिटी कंज्यूम करना शुरू की और आप सपोज करें कि यू आर गेटिंग 80 यूटिलिटी, सेकंड पे 70, 60, 50, 40। अब यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये आपने 80, 70, 60, 50 किस बेस पे लिया, और सेकंड 80 स्टैंड फॉर व्हाट, 80 स्टैंड फॉर व्हाट। और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये डिक्लाइन क्यों कर रहा है 80, 70, 60, 50, 40। सो तीनों क्वेश्चन के माइंड में मैं आपको इनके रिस्पॉन्ड करता हूं। पहली बात आपने पूछा कि सर ये एग्जैक्टली चले कुछ आंसर तो आपके माइंड में आ भी रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की वजह से, लेकिन ये 80, 70, 60, 50, 40 स्टैंड फॉर व्हाट, ये है यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट।
This is utility derived from second unit, third unit, fourth unit and fifth unit. आप जितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो उन तमाम यूनिट्स से डिराइव्ड यूटिलिटी जो है वो 80, 70, 60, 50 एंड 40 है। और आप ये समझते हैं कि आपके पास 5 रुपीज है तो आपने 5 के 5 रुपीज एक्सप्रेस कंज्यूम किए एंड यू आर गेटिंग 50, 40, 90, 150, 220 and 300, I guess. Is it correct? Is it correct? Jelly, is it fine? 300? Okay. A 300 utility, you are getting maximum utility 300. Please, all students who are sitting there, ये please आप just yes, no, okay इसमें respond करते जाएं. Keep on responding, please. So that एक live lecture बनेगा इसमें. आपको अगर fine है तो okay, no, yes, whatever इस तरह के response आपने बेटा कीबोर्ड पे just continuously आपने मुझे मेरे साथ साथ एक जैसे एक स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं ना फिजिकली, तो वो अपने फेस एक्सप्रेशन से या हेड मूवमेंट के साथ थोड़ा सा यस नो कर रहे होते हैं। तो काइंडली आप जो कि फिजिकली मौजूद नहीं है तो आप चैट बॉक्स में सारे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये जस्ट कीप ऑन टाइपिंग समथिंग, ओके, यस, फाइन, नो, एक्सक्यूज मी सर, एटसेट्रा। ओके, अगर मेरी चॉइस है, मेरी इनकम 5 रुपीज है एंड आई हैव स्पेंड ऑल माय इनकम ऑन एक्स कमोडिटी 300 and I'm getting 300 total utility. So this is also my choice. I want to change my goods. I want to change my product. Is it? I mean, don't I have this kind of power कि मैं अपनी product change करना चाह रहा हूँ? Yes. So I want to swap my product and I decided second commodity, that is Y. Problem क्या है? मेरे माइंड में आया कि यार मैं एक वाई प्रोडक्ट ट्राई करता हूं लेकिन उसकी यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की थोड़ी सी कम निकली। दैट इज नॉट इवन इक्वली वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर मी, इक्वल टेस्टी प्रोडक्ट फॉर मी। सो आई वांट टू स्पेंड माय एंटायर इनकम फॉर वाई। आई एम गेटिंग 70, then 60, then 50, then 40, then 30, and total I am getting 70, 120, 180, I guess 2 something. कितना 13, 250, 290. Oh, I guess 250. हाँ, yes, 250. क्यों जी, सब लोग बताएं, is this 250 or 280? Okay, or this is good that you just keep on replying yes, no, okay. चैट बॉक्स के अंदर जो मोमेंट हो रही है दैट इज वेरी फाइन, आई मीन फीलिंग गुड। मुझे लगता है कि सारे लोग फिजिकली आर प्रेजेंट हेयर। सो प्लीज, अब मैंने दोनों चीजों को कंपेयर करना है। आई वांट टू स्पेंड माय इनकम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई वांट टू गेट मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, और वो तो निकली 300, राइट? दैट इज 300। और अगर मैंने चेंज किया प्रोडक्ट दैट इज 250। सो मेरे लिए अब तक की जो डिसीजंस हैं, अब तक की जो कैलकुलेशंस हैं, उसमें से बेस्ट वन कौन सा है, एक्स और वाई? द बेस्ट फिट राइट नाउ
कौन सी चॉइस बेहतर है? ओ एक्सक्यूज मी सलमान, सलमान आपने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी हुई है? सलमान आपने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है? नो नो, आपने वो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ वाई कैसे कह दिया फिर? नो नो, दैट इज रिफ्लेक्टिंग दैट यू हैव सम आइडिया अबाउट इकोनॉमिक्स ऑलरेडी। ओके, अब मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक्स नहीं तो दो ऑप्शन है ना, y एंड x का। उस ऑप्शन में तो एक 300 कर रही है प्रोड्यूस और एक 250। तो फिलहाल तो मेरे लिए x का डिसीजन गुड फिट है, बिकॉज आई एम गेटिंग 300 यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग माय 5 रुपीज। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूं कि क्या कोई और वे आउट है कि 300 से ज्यादा भी यूटिलिटी मिल जाए मुझे। उसके लिए इकोनॉमिक्स कहती है कि फाइन, आप प्रीवियस स्क्रीन पे जाएं। वो आई गेस यहाँ की मैंने रेज कर दिया। वो कहता है कि सर आप यूं करें, ये फॉर्मूला ट्राई करें। एम यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई। आप इस इक्वेशन को यूज करके देखें, इस अप्रोच को यूज करके देखें, यू विल गेट डेफिनेटली मोर देन 300 इवन। मैंने कहा ओके कर लेते हैं ट्राई, इसमें क्या है। तो एम यू ऑफ एक्स और एम यू ऑफ वाई किस किस जगह पे इक्वल है, मैंने उसको ट्राई किया पहले। यहां भी इक्वल, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है और यहां भी इक्वल है। मींस 1 यूनिट ऑफ वाई, 2 यूनिट ऑफ एक्स, या 2 यूनिट ऑफ वाई, 3 यूनिट्स ऑफ एक्स, या 3 यूनिट्स ऑफ वाई, 4 यूनिट्स ऑफ एक्स, या 4 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 5 यूनिट्स ऑफ एक्स। ये सारे कॉम्बिनेशन मेरे लिए पॉसिबल हैं। आई मीन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिट हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम है, मेरे पास सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट है ऑफ ₹5, of ₹5. I have ₹5 only and I want to get maximum total satisfaction. तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने डिजाइन किया अभी, इसको देखो तो ये सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो ₹5 पे कैसे हो सकते हैं? ₹3 और ₹2, ये इक्वेशन भी पूरी हो जाए और ₹5 भी मेरे कंज्यूम हो जाए, क्योंकि ₹5 और ये एम यू ऑफ एक्स इज एम यू ऑफ वाई, ये और किसी तरीके से हो नहीं सकता। स्टार्ट आपने ऊपर से करना है, यानी कि आपने यहां से स्टार्ट करना है और नीचे को जाना है, इधर से स्टार्ट करना है और नीचे को जाना है। एम यू ऑफ एक्स और एम यू ऑफ वाई को इक्वल भी करना है और रुपीज भी मेरे पास सिर्फ 5 है। सो ₹5 करने के लिए 3 और 2, दिस इज द ओनली वे आउट। Yes, this area is maximum available for me right now, maximum। अब मैं इसको चेक करता हूं एट द मोमेंट व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी। TU इज 80। ओके सॉरी, बल्कि पहले हम ये करें, हम ये देखें बेस्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज 3 units of x and 2 units of y. Then TU is what? 80, 70, 60, 70, 60. Total is what? 340.
if I am spending my income according to the formula, this one, so 3 units of X here and 2 units of Y here, and I am getting 340. 80 की 80 क्या मतलब 80 समझ नहीं आया, बताएं, पूछे बेटे, आते पूछो भैया, 80 मीन व्हाट? जी आप पूछ सकते हैं 80। जी अली पूछें। मीनवाइल आप क्वेश्चन अपना टाइप कर लीजिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके, अब यहां आप कह रहे हैं कि यू आर गेटिंग 340 यूटिलिटी और ऑलरेडी यू आर गेटिंग 300 मैक्सिमम। So 340 is more than 300. कॉम्बिनेशन बेटे, कॉम्बिनेशन आप पूछ रहे हैं। मैं आप सबके क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, आप सब सुने। एक्सक्यूज मी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दोबारा कर लेते हैं क्योंकि ये इश्यू है, अगर तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए मेरे पास ₹5 राइट और 2 गुड्स, ओके। सपोज मेरे पास मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया एक्स का। अब मेरे साथ यस नो में रहेगा उस्मान, सलमान, अली। मैंने फर्स्ट यूनिट एक्स का कंज्यूम किया एंड सपोज आई एम गेटिंग 80 यूटिलिटी। सेकंड कंज्यूम किया 70, 60, 40, 30। ये वो यूटिलिटीज हैं जो डीएमयू के तहत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने से मुझे हासिल हुई और मुझे लगा कि आई एम गेटिंग टोटल 300 यूटिलिटी, ओके। और जब मैंने इसे छोड़ के वाई क्वालिटी स्टार्ट की तो मुझे यूटिलिटी जरा कम फील हुई। ओके, थैंक यू। 50 एंड 40 और सेकंड क्वांटिटी मैंने यूज की तो मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा सा कम था, 70, 60, 50, 40 एंड 30, ओके। अब जो फॉर्मूला हमारा अवेलेबल हमारे पास है वो है mu ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू mu ऑफ y इन ₹5। तो 5 यूनिट परचेज होने मेरे पास मैक्सिमम, अगर ₹5 मैंने सिर्फ हैं तो मैं इनमें से कुछ यूनिट x के और कुछ यूनिट y के कंज्यूम करूंगा, ओके। तो मैंने पहले सोचा कि x और y की जो यूटिलिटीज है वो इक्वल कहां कहां पे हैं। वो मुझे लगा कि इक्वल है या तो मैं 2 यूनिट इसके लूं और 1 यूनिट इसका कंज्यूम करूं तो मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर हैं। मार्जिन मीन
the utility derived from the last unit, utility derived from the last unit. तो अगर 3 यूनिट्स x के और 1 यूनिट y का लूं तो ये कंडीशन तो पूरी हो रही है मेरी, और लेकिन रुपीज कितने कंज्यूम हुए, 1, 2 and 3. So I have more 2 rupees, isn't? So I want to spend my other 2 rupees. तो मैंने क्या किया, 1 रुपी x पे और 1 रुपी y पे स्पेंड किया. अगेन कंडीशन पूरी हो रही है, 3 पे लास्ट यूनिट 60 और 2 यूनिट्स पे लास्ट 60. तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट तो इक्वल है, और रुपीज कितने कंज्यूम हो गए, 5. तो जो मेरा अटेनेबल कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, 3 of x and 2 of y. क्लियर हुआ यहां तक सबको? और टोटल यूटिलिटी कैसे बनती है, इसको ऐड कर लें, 5 यूनिट्स को ऐड करें तो टीयू कितना बना आपका, 340 I guess, yes, 340. Now 340 is more than 300. तो मेरे लिए जो आइडियल कॉम्बिनेशन या बेस्ट कॉम्बिनेशन बना, that is 340, because 340 is more than 300. ओके? हाँ, वो उस्मान पूछ रहे हैं कि आप कोई से भी 5 यूनिट ले सकते हैं. बेटे कोई से नहीं होते, 2 बातें ध्यान में रख लें, कोई से 5 नहीं. एक कंडीशन ये रख लें कि आपने फर्स्ट यूनिट से कंज्यूम करना शुरू करना है, फर्स्ट यूनिट से आपने मूव करना है दोनों तरफ, फर्स्ट से. और सेकंड, उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल होनी चाहिए लास्ट की. फॉर एग्जाम्पल बेटा आप मुझे बताएं उस्मान, अगर मैं 4 यूनिट इसके कंज्यूम करूं तो कितने रह गए मेरे पास बाकी ऑप्शन में, 1. तो वो इस पे कंज्यूम होगा फिर. अब 4 इस पे है, 1 इस पे है, तो 5 तो पूरे हो गए, लेकिन क्या इसमें आपका जो मार्जिन यूटिलिटी वो इक्वल हो रही है? नहीं. तो फिर इसका मतलब लॉस भी होगा. फिर ट्राई कर लेते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं ट्राई करने में. मैं ट्राई क्या कर रहा हूं, 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 1 ऑफ y. तो टीयू क्या बना, टीयू बनेगा आपका 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50, और उधर कितना रह गया, जस्ट 70. तो टोटल क्या बना, 260, 330. अभी भी 330 इज लेस देन 340. I guess now you got it. Yes. अब यहां से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हमारी वो ये है, सलमान, what do you mean by this? Not it is maximum. You mean 340 is not maximum? नहीं, 330 तो 340 से कम है ना. When you spend your income according to the theory,
according to that condition of equality, mu of x equal to mu of y, so then you are getting 340 units, and the time right now you are spending against the law and you are getting 330. That is not maximum. Exactly, 330 is not maximum, because कुछ और भी है जिसमें आप you are getting 340. You are getting here 330, and other way you are getting 340. So how you can say the 330 is maximum? It is maximum तो वो चीज होती है जिसके बाद कुछ नहीं होता, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता. Okay? Yes, 340 is maximum. Because किसी भी और तरीके से आप करके देखेंगे तो then you will not be able to get 340 utility. So this is the only way you want to get 340. This is the only way.